कर्ता इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक अंडर हिंदू लॉ और आप देखेंगे कि जिस स्टेट जुडिशरी में हिंदू लॉ आता है, बीट हरियाणा जुडिशरी, दिल्ली जुडिशरी, यूपी, बिहार, कर्ता एज अ कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड शुड बी क्लियर इन द माइंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स। और आप इस टॉपिक से क्वेश्चंस प्रीलिम्स में, मेंस में एंड इवन इन इंटरव्यू में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर हु इज अ कर्ता, कैन डॉटर और मदर बी मेड अ कर्ता, पावर्स ऑफ कर्ता, ड्यूटीज और लाइबिलिटीज ऑफ कर्ता, लैंडमार्क केसेस एंड रिसेंट चेंजेस। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कर्ता टॉपिक पे पूरा प्रॉपर डिटेल्ड एक ओवरव्यू हो जाएगा। आप अगर और अपडेट करना चाहते हैं अपने आप को किसी भी जानकारी के लिए तो आप legalbytes.in वेबसाइट पे जाएं, लॉ लाइब्रेरी सेक्शन को खोलें, उसके अंदर हिंदू लॉ में आप देखेंगे कि हमने सारे टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से स्टडी मटेरियल को अरेंज करा है। नॉट जस्ट दैट, इवन मेंस के सारे क्वेश्चंस आंसर्स को हमने वहां पे सॉल्व कर रखा है। आप एक एक टॉपिक को जब कवर कर लेंगे उसके थ्रू तो हिंदू लॉ पे आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मूविंग अहेड, कर्ता ज्वाइंट हिंदू फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है। सो द ज्वाइंट हिंदू फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन इज वेरी पिक्यूलियर टू हिंदू जूरिस्प्रूडेंस एंड इसका जो ओरिजिन है इट्स इन एंशिएंट ऑर्थोडॉक्स टेक्स्ट्स एंड राइटिंग्स। Though it originated in the propagation of the theory conferring upon the father nearly absolute authority. However, by efflux of time, the system was considerably changed to confer equal rights on the sons by birth. So, let us first look now as to who is a karta. So, definition simple hai, senior most male co-partner in the family is the karta. In the setting of joint Hindu family, the position of karta is occupied by the head of the family who occupies the most significant position in the family. The karta manages all the affairs and property of joint Hindu family. So it's usually the father or the senior most male member of the family. So this position, karta acts as a head on behalf of the family but not as a partner or agent जैसे contract में होता है। Here the कर्ता का जो पावर है ना, it's very wide and it's unlimited. Even a woman now can become a कर्ता of joint Hindu family where there is an absence of male member in the family. So in the case of Miss Sujata Sharma versus Shri Manu Gupta and other, this is a very important case. So Delhi High Court passed an effective reformative decision in this case where it was held that the eldest female member of the family, being the co-partner in a Hindu undivided family, can also be a karta. So before we proceed further, let me point this out that you must have heard the word पिंडदान। पिंडदान घर में सिर्फ कर्ता करता है। पिंडदान जिन लोगों को नहीं पता हो मैं बता दूं, it is an offering of prayers to the ancestors which can be done only by the senior most member. He is one who is karta. So karta has to manage the entire family property and has to take decisions with respect to joint family property. Generally, he is not bound to account for past dealings of joint family property unless in case of fraud, जो कि उस पर एलेज हुआ हो, ये नहीं कि पहले का कुछ हो, और partition is claimed by the members or co-partners. So in this case only he is answerable, otherwise he has unfettered powers. ठीक है? Now let us look at can daughter or mother be made a karta. ये एक क्वेश्चन है, बहुत दिनों तक यही था कि only male members can do so. आप सब जानते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है ना, इट्स अ वेरी पेट्रियार्कल सोसाइटी। सो सिंस एजेस पेट्रियार्की का सेटअप है इंडिया में, जिसका मतलब ये है कि अ गर्ल व्हेन शी गेट्स मैरिड शी गोज टू हर हस्बैंड्स हाउस। हस्बैंड वाइफ के घर नहीं जाता है, एक लड़की अपने मैटरनल घर से मैट्रिमोनियल घर आती है। इसका मतलब सोसाइटी में, फैमिलीज में बहुत से रिचुअल्स एक्सेट्रा लाइक पिंडदान ऐसे है जो कर्ता या फिर मेल डोमिनेटेड ही रहा है, सिर्फ मेल ही करते हैं उन रिचुअल्स को। So this resulted in male succeeding as karta in Hindu undivided families since time immemorial. So it was in the case of Pandurang versus Pandurang that it was held by Nagpur High Court that the mother can become karta if there is no other adult co-partner, whereas the Supreme Court did not agree with the view in case of Commissioner of Income Tax versus Seth Govind Ram Sugar Mills. It was in 2005 when the amendment was brought in the Hindu Succession Act with the aim to remove gender discriminatory provisions regarding the right to property.
It was indeed a great initiative by Supreme Court to provide equal rights to both daughters and sons. So by virtue of the amendment in 2005, a daughter has been made a co-partner. So co-partner का मतलब कि daughters को भी अब ancestral property पर उतना ही हक है जितना sons का है. अब ये मैटर नहीं करता. So in the recent case of सुजाता शर्मा versus मनु गुप्ता, इस केस में क्या हुआ था? दिल्ली हाई कोर्ट held that a daughter can also be made a कर्ता by virtue of section 6 clause 1. अर्लियर क्या सीन था कि daughters could not be made a कर्ता. Now let us look at powers of कर्ता. और एक और चीज आप ध्यान रखें कि daughters का अब शादी हो जाए, घर में है, इससे मैटर नहीं करता. ये नहीं कि शादी हो गई तो अब नहीं हो सकता, वो अब भी हो सकता है. उनको प्रॉपर्टी का मिल सकता है हिस्सा अगर वो क्लेम करती हैं तो. ठीक है. सो नाउ लेट अस लुक एट पावर्स ऑफ कर्ता. So what are the important powers? You must note down these things, those important cases also which we have talked about. These cases are the basis of the development of कर्ता as a concept, किस तरह से डेवलप हो रहा है nowadays. ठीक है. अब क्या पावर्स है, हम लोग पावर्स देख लेते हैं. पावर ओवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, पावर टू मैनेज द ज्वाइंट फैमिली बिजनेस, पावर टू कॉन्ट्रैक्ट अ डेट फॉर फैमिली पर्पसेस, power to enter into a contract, power to refer to arbitration, power to enter into a compromise, power to give discharge, power to represent in suits, power of alienation. So basically आप देखेंगे कि जो भी कुछ हो सकता है ना with regards to property, सब कुछ आप देख रहे हैं कि ये सारा पावर किसके पास है? कर्ता के पास है. ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली का ये सेटअप अगर है तो. ठीक है. कर्ता हैज इवन द पावर टू एलियनेट ज्वाइंट हिंदू फैमिलीज प्रॉपर्टी. So he can do so if the important conditions are met. Like there are few important conditions such as all other co-partners का consent है, benefit of estate है और legal necessity है उसको ये करने का. ठीक है. But कर्ता does not need co-partners का consent in everything. Only from for the point of alienation जब उसको करना होगा ना तभी उसको ये देखना है. ठीक है. But and there are few of the duties which the कर्ता has. See, with the powers comes duties. There are a lot of duties which he has to take care of. So he has the duty to render accounts. His duty is to realize debt due to the family, to spend reasonably, to not start a new business without the consent of other co-partners. Duty of कर्ता to maintain all members of joint family. He has these important duties. ठीक है. अब हम लोग वो 3 पॉइंट को देख लेते हैं कि को-पार्टनर्स का कंसेंट में हमने देखा कि बेनिफिट ऑफ स्टेट क्या होता है, जरा समझ लिया हम उसको. सो कर्ता फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और फॉर प्रिजर्विंग सम प्रॉपर्टी फ्रॉम एक्सटिंक्शन और फ्रॉम कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, ही कैन एलियनेट सम प्रॉपर्टी इंस्टेड एंड परचेज सम प्रॉपर्टी एल्सवेयर. ठीक है. सो हाउएवर ही हैज टू एक्सरसाइज हिज ओन प्रूडेंस इन सच केसेस एंड इफ ही मेक्स एन एरर ऑफ जजमेंट ही शैल नॉट बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेम अनलेस अ फ्रॉड हैज बीन अलेज्ड अगेंस्ट हिम. ठीक है. ये नहीं है कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, क्यों नहीं कर दिया. अगर ठीक लग रहा है तो वो कर सकते हैं ऐसा. ठीक है. अब लीगल नेसेसिटी क्या बनता है? कर्ता इज बाउंड टू डू न्यूमरस ड्यूटीज. इट मीन्स सर्टेन लीगली बाइंडिंग ड्यूटीज विच द कर्ता हैज टू फुलफिल. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग, मैरिज के एक्सपेंसेस बचे हुए हैं, पिंडदान करना है, फ्यूनरल के एक्सपेंसेस है, मेंटेनेंस ऑफ द फैमिली है, तो ये सब कर्ता को करना पड़ता है. हमें एक बात यहाँ पे याद रखने की जरूरत है, कर्ता हैज अनफिटेड पावर्स व्हेन टू सेल. ठीक है. डिफेंस ऑफ बेनिफिट एंड नेसेसिटी विल कम इनटू क्वेश्चन आफ्टर सेल हैज बीन मेड. ये ध्यान में रखना हमें. ठीक है. सो कंप्लीट सेल हैज टू बी मेड, उसके बाद ही ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है. इन कहर सिंह वर्सेस नचित्र कौर एंड अदर्स 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेटेड द फॉलोइंग टू बी द लीगल नेसेसिटीज. जो हमने ऊपर बात करी है इसी चीज को मैं रिट्रेट कर रहा हूं इस केस के थ्रू. ठीक है. पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, मेंटेनेंस ऑफ co-partners and members of their family, marriage expenses of the male co-partners and their daughters, cost of necessary litigations which may be civil or criminal, and then the payment of debts incurred for family business etc. ठीक है. क्या लीगल नेसेसिटी है वो डिपेंड करेगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हर केस के अनुसार. ठीक है. इससे एक और सवाल अब उठता है कि कैन अ को-पार्टनर एलियनेट हिज अनडिवाइडेड को-पार्टनरी इंटरेस्ट. क्या वो कर सकता है एलियनेट अपने इंटरेस्ट से? सो एक इंडिविजुअल मेंबर ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली हैज नो डेफिनिट शेयर इन को-पार्टनरी प्रॉपर्टी. सो बाय सच एलियनेशन ऑफ हिज इंटरेस्ट अ को-पार्टनर कैन नॉट डिप्राइव अदर को-पार्टनर ऑफ देयर राइट टू प्रॉपर्टी. अब एक और सवाल आता है,
Can a co-partner make a sale or mortgage of his undivided co-partnership property? So according to Bombay, MP and Madras High Court, he can do it even without consent of Karta on such mortgage of co-partnership property. ठीक है? And according to Calcutta and Allahabad High Court, it can only be done to pay in legal necessity or pay the father's debt. ठीक है? तो इसी पॉइंट पर आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। कर्ता एज अ कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पूरा हिंदू लॉ के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। जहाँ भी जॉइंट हिंदू फैमिली एग्जिस्ट करती है तो ये टॉपिक पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम बनाते रहेंगे हिंदू लॉ से रिलेटेड, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नए टॉपिक्स को आगे की वीडियोस में। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग सो मच एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड मस्ट कॉमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस विथ रिगार्ड्स टू दिस। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।